سب سے پہلے پاکستان میں ڈاکٹر نبیہہ علی خان پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، پورا سچ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ایک اور پروگرام پر ایکشن ہوا ہے اور ضلعی انتظامیہ میں خاص طور پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈی سی لاہور رافیہ حیدر صاحبہ کا کہ جنہوں نے منی پیٹرول پمپس کے حوالے سے میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس حوالے سے ہم نے دکھایا تھا کہ کس طرح غیر قانونی طور پہ منی پیٹرول پمپس کھولے جا رہے ہیں اور یہاں تک بھی دکھایا کہ چنگچی رکشہ پر کس طرح منی پیٹرول پمپ لگا کے جگہ جگہ وہاں پہ پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ غیر قانونی حرکت جو ہے اس سے قانون حرکت میں آیا اور ضلعی انتظامیہ نے اس پر نوٹس لیتے ہوئے سی ڈی او صاحب کو ایکٹیو کر دیا، جنہوں نے غیر قانونی طور پر پیٹرول مشینز کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی منی پیٹرول پمپس جہاں جہاں بھی موجود ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور بلا تفریق جو ہے وہ کارروائیاں جاری ہیں۔ اس حوالے سے ہم ضلعی انتظامیہ کو جو ہے وہ یہاں پہ شکریہ بھی ان کا ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے ہمارے رپورٹر جنید اشرف نے، وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں منی پیٹرول پمپس اور تیل ایجنسیوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ منی پیٹرول پمپس اور تیل ایجنسیاں جو انسانی جان اور مال کے لیے خطرے کا سبب بنتے ہیں۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کی ہدایت پر سی ڈی او لاہور ملک عرفان نے لاہور بھر میں غیر قانونی منی پیٹرول مشینز کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6 غیر قانونی ایجنسیاں اور 5 LPG دکانیں سیل کی گئی۔ آئل ایجنسی مالکان کے خلاف متعلقہ تھانوں میں استغاثے بھی جمع کروائے گئے۔ تحصیل سٹی کے علاقہ اسلام پورہ میں 4 اور مزنگ میں 1 غیر قانونی قائم LPG دکانوں کو سیل کیا گیا۔ سمن آباد میں 1، راوی زون میں 2 غیر قانونی ایجنسیوں کو سیل کیا گیا۔ نصیر آباد میں 1 اور واگا زون میں 2 غیر قانونی ایجنسیوں کو سیل کیا گیا۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا تھا کہ گلی کوچوں میں غیر قانونی طور پر قائم منی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پیٹرول اور LPG کا غیر قانونی کام کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر منی پیٹرول پمپس اور ایجنسیوں کی مشینری ضبط کی جا رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ 6 غیر قانونی ایجنسیاں اور 5 LPG جو دکانیں تھیں وہ سیل کی گئی ہیں۔ مختلف یہ علاقے ہیں جہاں پر یہ دکانیں سیل کی گئی ہیں، کہیں 2، کہیں 1، کہیں 5، کہیں 4، اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ٹوٹل میرا خیال ملا کر جو ہے وہ ابھی تک فی الحال 5 LPG دکانیں جو ہے وہ سیل کرنے کی رپورٹ ہمارے تک موصول ہوئی ہے، لیکن ابھی بتایا یہ جا رہا ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ مزید جن علاقوں میں یہ منی پیٹرول پمپس بنائے گئے ہیں ان کو سیل کرنے کے حوالے سے مکمل کارروائیوں کا جو ہے وہ پلان کر لیا گیا ہے، آغاز ہو چکا ہے اور اب جہاں بھی کہیں یہ منی پیٹرول پمپس نظر آئیں گے باقاعدہ طور پر ان کو سیل کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی ایک بڑی کارروائی ہے کیونکہ یہ ایک LPG مافیا اور دوسرا یہ منی پیٹرول پمپ مافیا جو ہے یہ باقاعدہ طور پر اس وقت شہر میں زور پکڑ چکا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب یہاں پر دکانیں سیل کرنے سے کیا کام بن جاتا ہے یا ان کی مشینوں کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیا جائے گا اور پھر باقاعدہ طور پہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا؟ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہم جانیں گے۔ سول ڈیفنس آفیسر ہمارے ساتھ ہوں گے آن کال، جب وہ ہمیں کال پہ جوائن کرتے ہیں تو ان سے بھی ہم بات کریں گے اس حوالے سے، لیکن ابھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رپورٹر اور وہ ہمیں جو ہے اس حوالے سے بتائیں گے جنید اشرف۔ جی جنید، بتائیے گا، یہ کارروائیوں کا آغاز تو کر دیا گیا ہے ڈی سی صاحبہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن ان احکامات کو کہیں دھجیوں میں تو نہیں اڑا دیا جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ کچھ وقت کی کارروائیاں ہیں اور اس کے بعد پھر یہ منی پیٹرول پمپس وہیں پہ لگا کے بیٹھ جائیں گے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں بہت شکریہ نبیہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی، تو آپ کو پتہ ہے لاہور کی جو پبلک ہے اس کی آواز کوہ نور ہے اور کوہ نور کی شروع سے یہی کوشش رہی ہے کہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں اس کو جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے اور جو اعلیٰ حکام ہے ان تک نہ صرف پہنچایا جائے بلکہ انہیں دکھا کر باقاعدہ طور پر نشاندہی کر کے ان کے خلاف جو ہے ایکشن بھی کیا جائے اور عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کوہ نور کی سکرین پہ ہم نے جو ہے پروگرام کیا تھا اور وہاں پر ہم نے مختلف جو تھی یہ آئل ایجنسیز کے حوالے سے بات کر لیں، غیر قانونی LPG پوائنٹس کے حوالے سے بات کر لیں یا پھر منی پیٹرول پمپس کے حوالے سے بات کر لیں، اس کی جو ہے نشاندہی کی تھی۔ اور لاہور کی 5 تحصیلوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی خلاف ورزیاں نظر آئیں گی اور غیر قانونی طور پر قائم جو LPG ریفلنگ سٹیشنز ہیں LPG، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو منی پیٹرول پمپس کا جو ہے دن بدن
इजाफा रुझान जो था वो बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए हमने जो है उस पर बाकायदा तौर पर जब निशानदेही की और मुतलका जो है हुकाम को आगाह किया, तो आप देखें कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने जो है इसके खिलाफ जो है एक्शन के अहकाम जारी किए। आप देखें कि मुख्तलिफ महकमों को जो है इस वाले से अहकाम भी जारी किए जाते हैं और एक्शन लेने का कहा भी जाता है, लेकिन बहुत सी आप इस तरह की जगह देखेंगे जहां पर जो है अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया जाता। लेकिन अब आप देखिए कि जो सिविल डिफेंस ऑफिसर है मलिक इरफान साहब, जो इरफान अली साहब, इन्होंने बाकायदा तौर पर जो हदायत थी उसके मुताबिक जो है एक्शंस लिए हैं और जहां जहां पे भी वायलेशंस थी उसके खिलाफ जो है कार्रवाइयों का आगाज कर दिए हैं। ना सिर्फ इन कार्रवाइयों को एक जोन तक या फिर लाहौर के एक इलाके तक जो है वो रखा गया, बल्कि पूरे लाहौर में जो है तमाम टीमों को जो है ना सिर्फ चेकिंग की जा रही है और बाकायदा तौर पर जो है उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दी जा रही है कि आपने इस वाले से जरा हमें बताते हैं। और आपकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 5 दुकानें सील की गई हैं, तो 5 दुकानें तो इनफ है, मतलब ये तो बहुत सारी दुकानें इस तरह की है जहाँ पे LPG के हवाले से भी और दूसरे मिनी पेट्रोल पंप्स के हवाले से मशीनरी भी जो है वो रखी हुई है। तो आप क्या समझते हैं एक ही इलाके में 2-2, 3-3 मिनी पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, तो इस हवाले से जो है वो कार्रवाइयों में कोई देरी हो रही है या फिर ये मजीद जो है वो जोर पकड़ेंगी? अब देखिए इसका जो कार्रवाइयों के हवाले से आपको बताता चलूं आने वाले दिनों में, और अभी भी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त भी आप देखेंगे लाहौर अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है इरफान अली साहब ने, सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं, CDO हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया इरफान अली साहब, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। सर हमें बताइएगा कि इस वक्त आपने जिस तरह मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया है, ये कहां तक पहुंची है और मजीद कहां तक पहुंचेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपने इनवाइट किया जी। तो ये कार्रवाइयाँ हमारी डेली बेसिस पे हो रही है जी। तो पिछले 3 मंथ में हमने 350 प्लस जो है वो FIR दी हैं, इसके अलावा एजेंसी सील की हैं और काफी ज्यादा हमने मशीन कॉन्फिस्केट भी की है। ठीक है। और इवन आज भी कार्रवाई हो रही है। सही, यानी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। सर ये कब तक जारी रहेगा, क्योंकि एक ही इलाके में 2-2, 3-3 मिनी पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं और हमने बहुत सारी निशानदेही भी आपके सामने की है अपने प्रोग्राम में। जी जी बिल्कुल, बल्कि आपके साहब हैं कोहिनूर के हैं, अयान मलिक साहब हैं कोहिनूर के, जो भी निशानदेही की जाती है उसी वक्त उस पर एक्शन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। और इसके अलावा भी हमारी टीम जो है वो मुसलसल डेली बेसिस पे एक्शन कर रही है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इतने ज्यादा मिनी पेट्रोल पंप्स खोल लेना, और हमने जो है वो एक पिक्चर भी दिखाई थी अपने प्रोग्राम में जिसमें चिंची रिक्शा में मिनी पेट्रोल पंप जो है वो लगाया हुआ था, तो ये आप अब इस हवाले से जो है वो इनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई क्या अमल में लाई जा रही है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम जो चिंची रिक्शा हमें नजर आता है हम उसे कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। अभी भी मेरे पास 3 से 4 जो रिक्शे हैं वो बंद पड़े हुए हैं। ठीक है। और जो हम बिल्कुल वापस नहीं करते, जिसे पकड़ लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सर मतलब ये पक्की बात है कि मशीनरी इनको वापस नहीं की जाएगी, आपकी तहवील में ही रहेगी? जी जी श्योर, जो हम पकड़ लेते हैं वो वापस नहीं हम करते। ठीक है, तो मतलब अब ये दोबारा वहीं पर मिनी पेट्रोल पंप्स नहीं लगा पाएंगे? जी इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है कि दोबारा ना लगाएं। पास में लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 मशीनें रखी हुई हैं जी। तो जब हम उठाते हैं कोई अल्टरनेटिव वो रख लेते हैं, तो जैसे हमें पता चलता है फिर दोबारा एक्शन होता है और वो भी हम उठा लेते हैं। ठीक है सर, इसमें मुझे ये बताइएगा कि जो जाहिर है इन्वेस्टिगेट करने वाले इंस्पेक्टर्स होते हैं, टीम वर्क है, आप लोगों का पूरा एक टीम बनी हुई है, अगर वो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने में कोई कोताही करते हैं और आप तक बात पहुंचती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने में आप लोगों को कितने दिन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, और उसके बाद जो है वो अब इनके लिए किया क्या जाएगा? क्या इनको मतलब FIR काटी जाती है इनके हवाले से, या क्या होता है? जो भी हमारे पास इस तरह से कोई कंप्लेंट इंस्पेक्टर से मतलब पहुंचेगी, इंशाल्लाह उससे कानूनी कार्रवाई जो होगी वो करेंगे और DC साहब के नॉलेज में लाया जाएगा और उस बेस पे मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी प्रूव होने पे FIR भी होगी। ठीक है। अच्छा ये देखिए, मिनी पेट्रोल पंप तो ऑलरेडी खुद ही गैर कानूनी चीज है, आपने पकड़ ही ली है, गैर कानूनी मशीन है कि जिसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उस जगह पर रखा जा रहा है, एक छोटी सी दुकान है, वहाँ लोगों की जिंदगी भी खतरे में है, उनकी अपनी जिंदगी भी खतरे में है, लेकिन इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते। कैसे ला के जो है वो लगा लेते हैं इतना बेधड़क? कोई इनको पूछने वाला नहीं है इस हवाले से? नहीं बिल्कुल पूछने वाले हैं, इसलिए इनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं
تو अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया कि पिछले 3 माह में हमने 350 प्लस जो है ना वो इनके खिलाफ FIR की हैं, दुकानें सील भी हुई हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब हम आने वाले टाइम में जो है वो प्रोग्राम आपकी कारकर्दगी के हवाले से ही करेंगे कि आपने जो है वो बाकायदा तौर पर, वैसे तो मैंने सुना भी है कि आपके पास जो बात पहुंचती है आप फौरन एक्शन लेते हैं इस चीज का, इस पर हम आपके शुक्रगुजार भी है और ये एक अच्छी बात भी है कि आप अपने फराइज से गफलत नहीं बरतते हैं। तो ये आने वाले टाइम में सर मजीद कार्रवाइयों की जो है वो जरूरत है, और ये गैर कानूनी तौर पे जो LPGs अभी दुकानों को आपने सील किया गया, हमें उम्मीद है कि ये नेक्स्ट टाइम नहीं खुलेंगी। सर अगर बात करें इंशाल्लाह जी, हम जो कार्रवाई कर रहे हैं बड़ी ऑनेस्ट वे से कर रहे हैं। मेरे पास जो भी कंप्लेंट आती है उसी वक्त मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि रवाना हो जाए और इन पे कार्रवाई करें, और कहीं अगर वो मेरा मतलब नहीं पहुंच पाते तो मैं खुद भी फील्ड में जाके कार्रवाई करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये जुनेद आपको सवाल करना चाह रहे हैं। इरफान मलिक साहब ये बताइएगा, जो FIRs का इंदराज करवाया गया है सबसे ज्यादा कौन सी तहसील में और कौन कौन से इलाकों में, अगर खासकर बात करें शालामार जोन के हवाले से या फिर दातागंज बख्श टाउन के हवाले से, कहाँ कहाँ पर ज्यादा इंदराज करवाया गया है, और जो जो जब्त कर ली गई है इनकी मशीनरी के हवाले से बात कर लें, और क्या समझते हैं कि आइंदा कितने आने वाले दिनों में जो है आपको कमी नजर आएगी और बेहतरी का रुझान जो है मुसलसल बढ़ता चला जाएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी के चांस तो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 मंथ में आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सारा चेक कर सकती हैं कि जो भी मैं पकड़ लेता हूँ उसे अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ता नहीं हूँ। सही है। तो जो FIR होती है, अगर उसकी जमानत होती है, अगर उसके पास कोई अल्टरनेटिव मशीन है तो वो लगाने की कोशिश करता है, तो जैसे हमें पता चलता है हम दोबारा भी उस पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है। तो रही बात ये है कि क्योंकि शालीमार टाउन में ज्यादा मशीनें हैं, उधर सबसे ज्यादा FIR जो है ना वो इंदराज होती है। शालीमार जोन के हवाले से प्रोग्राम किया था सर हमने पिछला, जिसमें निशानदही जो है बाकायदा तौर पे करवाई थी, और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी इस मशीनरी को जो है अपनी तहवील में ही रखेंगे, ना कि जो है उनको चंद रुपयों के इवज जो है वो छोड़ दिया जाएगा कि ये बाद में फिर उसी जगह पर हो, क्योंकि कैमरे की आंख से तो कोई नहीं बच सकता सर, और मेरा ख्याल है आपके वार से भी कोई नहीं बच सकता। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि फाइन का कॉन्सेप्ट ही खत्म है हमारे यहाँ। हाँ। तो जब हम फाइन नहीं करेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? जी तो बिल्कुल हम ठीक है। इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं। इरफान अली साहब बहुत शुक्रिया, सिविल डिफेंस ऑफिसर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे, और जैसे आपने उनकी बात सुन ली, उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे जो भी मिनी पेट्रोल पंप लगाने में मुलविस हुआ, या फिर आप ये मत समझें कि अगर FIR हो गई है और उसके बाद आपकी जमानत हो गई है तो आप किसी भी तरीके से अपनी मशीन जो है वो दोबारा से लगा सकेंगे। अच्छा, एक और इंकशाफ हुआ है जुनेद के, उन्होंने ये कह दिया है कि इनके पास जो है वो 2-2 मशीनियां होती हैं। अगर इन्हें पता होता है कि अगर एक मशीन जो है वो हमारी चली जाएगी तो हम दूसरी मशीन जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे तब तक, तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद भी फिर हमें जब ये पता चलता है कि वहां पर कोई और मशीन लग गई है तो फिर उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई अमल में लाते हैं। हम अंदाजा लगाए ना कि लोग तंग कैसे करते हैं और इन्होंने अपनी 2 नंबरियों को कैसे चमकाया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल जी, देखिए अब जो आप देखेंगे अफराद इन कारोबार में मुलविस हैं, उन्होंने बैकअप के तौर पे इसी तरह मशीनरीज का अपने पास रखा होता है, स्टॉक रखा होता है। हाँ। इसलिए आप देखते हैं कि जब से क्रैकडाउन का आगाज किया गया है उसके बाद अगर कहीं पे दोबारा उस तरह की एक्टिविटी नजर आती है तो वो दोबारा निशानदेही करके जो है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। और जिस तरह से हमने इससे पहले भी प्रोग्राम किया था ये शालामार जोन के हवाले से, जिस तरह से अब CDO साहब ने भी बताया कि सबसे ज्यादा जो FIR का अंदराज है वो शालामार टाउन में किया गया, उस जोन में किया गया है। और आप देखिए कि ये वो इलाका, ये वो टाउन है जहाँ पर ज्यादा तौर पे इस तरह की गैर कानूनी जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ने का रुझान था, और जब से जो है कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है तो आप देखें तब से जो है बेहतरी आएगी। अब मोर देन 350 जब अब FIRs जो हैं वो रजिस्टर हो गई हैं। हाँ। और वो 350 का मतलब है कि जो 350 लोग थे उनको बाकायदा तौर पर अब कानून ने अपने शिकंजे में ले लिया है, उनके खिलाफ इस्तगासे दिए गए हैं, FIRs दी गई हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी जो है अगर मशीनरी थी या अगर कोई गैर कानूनी LPG पॉइंट्स थे उनका सामान भी जो है जब्त कर लिया गया है। होता क्या है, मौका पर होता ये है कि जब हम कार्रवाई करते हैं, मौके पे जब कार्रवाई हो रही होती है ना एक इलाके में, उन्हें पता चल जाता है कि एक जो है वो सील हो गई है, तो वो जल्दी से उन्होंने अपनी मशीन कुछ इस तरह से सेट की होती है कि उस मशीन को जल्दी से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे भी वाकयात जो है आप देखें, आपको शिफ्ट करने के अलावा भी गायब होने के वाकयात भी जो है वो रूनमा होते हैं। हाँ। और जिस तरह यूं महसूस होता है इधर तो कितने सालों से कोई मशीन रही ही नहीं है, इस तरह से उधर जब एक्टिविटीज का आगाज कर दिया जाता है तो इसलिए जो है जब भी कोई एक्टिविटी की जाती है वो किसी को बताए बगैर जो है अचानक से एक्टिविटी की जाती है, ताकि जो इर्द गिर्द वाले जो दुकानदार हैं या फिर जिन्होंने मिनी पेट्रोल पंप खोले हुए हैं या LPG पॉइंट्स खोले हुए हैं उन्हें
पता ना लगे और उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की अच्छा जाए। पता क्या होता है, कॉर्पोरेशन वाले आए या ये मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ यानी गैर कानूनी किसी चीज के खिलाफ जब कार्रवाई का आगाज होता है ना, तो आस पड़ोस वाले जो होते हैं ना वो बड़े बन जाते हैं, आपके चहीते रिश्तेदार हो जाते हैं, उनसे बेहतरीन रिश्तेदार कोई नहीं सामने आता, वो कहते हैं जी हम बचाएंगे इस बंदे को, इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है। मतलब आपको ये समझ नहीं आ रही कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है, खुदा ना खास्ता आपके इलाके में कोई इससे धमाका हो जाता है, कोई वहां पर जो है वो जली हुई सिगरेट फेंक जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो जानी और माली कितना नुकसान होगा। इस चीज को आप साइड पे रख के उस बंदे को बचाना शुरू कर देते हैं कि जो गैर कानूनी हरकत कर रहा है। आप ये भूल जाते हैं कि ये गैर कानूनी है, आप उस टाइम जो है वो इंसानियत के तकाजे को लेके सामने आकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सारे मोहल्ले वालों में ये चीजें मैंने कॉन्सेप्ट बहुत देखा है, तो इस तरह ना करें बराए मेहरबानी। लोगों से भी हमारी अपील है कि जब हम किसी गैर कानूनी चीज की निशानदही करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप आगे बढ़ चढ़कर जो है वो बताएं और निशानदही करें। अगर उसने कोई मशीन कहीं छुपा भी ली है तो उसको बरामद किया जाए और वहां से जो है वो इस गैर कानूनी चीज को खत्म किया जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता कल को कोई हादसा हो गया तो तब आप भी और आपकी फैमिली भी उसकी लपेट में आएंगे। जी ये बिल्कुल, चीजें सोचने वाली जी हैं। बिल्कुल। देखिए कि इस वाले से अब शहरियों का भी जो है अपने फराइज से बखूबी जो है अब उस पर अमल पैरा होना चाहिए कि बिल्कुल। अगर कहीं पे भी वायलेशन हो रही है उसकी ना सिर्फ निशानदेही करे बल्कि जो है इंतजामिया का साथ दें ताकि जो है इस तरह की वायलेशन ना हो, उनकी जान और माल को जो है खतरा ना हो। बिल्कुल। आप देखिए इस वाले से जब ये अगर टाउन के हवाले से बात करें, टाउन अमले की जो है कारकर्दगी और काम करने का तरीका अलग होता है। जी। जब भी आप कोई टाउन अमला काम करता है या कारकर्दगी करता है उसका तरीका कार जब वो तजावजात के खिलाफ कोई ऑपरेशन करता है या फिर उनके तजावजात उठा लिए जाते हैं जी। तो उनकी कार्रवाई ये होती है कि वो उसका बाकायदा तौर पर चालान करते हैं, चालान काट कर जो है वो दे देते हैं या कुछ रुपए के एवज जो है वापस कर दी जाती है। लेकिन जब सिविल डिफेंस की आप बात करें तो इधर जो है इस तरह के मामला नहीं है। अगर किसी की मशीन जब्त हो गई है या फिर उसका कोई चीज जब्त कर ली गई है तो उसे फाइन नहीं किया जाता, बाकायदा तौर पर जो है अपनी तहवील में ले लिया जाता है ताकि जी। जो है दोबारा कोई गैर कानूनी तौर पर जो है उसकी एक्टिविटी ना कर पाए या फिर उसे जो है बढ़ाने में अपना किरदार अदा ना कर पाए। जी। मसला इधर ये आता है कि जो शहरी हैं, जो शहरी अगर साथ देते हैं उन लोगों का जो इन गैर कानूनी एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं, जी। उनकी वजह से मजीद मसाइल का सामना करना ऐसा ही है। पड़ता है। जब एक्टिविटी करते हैं ऐसा ही। उसी दौरान जो है उन्हें आगाह कर दिया जाता है और उनकी मदद फराहम कर दी जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो मशीनरी है वो कुछ इलाकों में अगर 20 पॉइंट हैं तो अगर 2-4 के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो 16 पॉइंट्स उस वक्त जो है वो बंद कर दिए जाते हैं ऐसा ही है। और इसी वजह से वो कार्रवाई से जो है वो बच जाते हैं। लेकिन दोबारा जो है बाकायदा तौर पर जो है देख कर जांच पड़ताल करके टाइमिंग वगैरह देख के फिर उनकी लोकेशन वगैरह देख के दोबारा कार्रवाई की जाती है। इस तरह जो है कार्रवाइयों का आगाज किया गया है और इसका बाकायदा तौर से कुछ महीनों से आगाज कर दिया गया है और अब जब से हमने निशानदेही किया और उन पॉइंट्स को भी जो है बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इस्तिगासे दिए जा रहे हैं। ठीक है। और जहाँ पे वायलेशन हो रही है, जहाँ पे खतरा होता है कि दोबारा इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वहां पर सिविल डिफेंस के जो एहलकार होते हैं और मुतलका टीम मेंबर से होते हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो वहां पर देखें, मॉनिटरिंग करें। असल में अगर जुनैद, जब वायलेशन बड़ा करें अफसर जो है वो एक्टिव हो जाए ना तो उसके बाद ये जो छोटे अफसरान है ना या छोटे ये जो एहलकार हैं या इंस्पेक्टर्स हैं जो जगह जगह जाके कहते हैं कि कोई गल नहीं तू लाई रख मशीन असी वेख लांगे, कोई टेंशन वाली गल नहीं, बस साडी जेब गर्म होती रहे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इसने हमारे पाकिस्तान और हमारे माशरे को बिगाड़ दिया। माजरत के साथ मैं बोलती हूँ पूरा सच, और मैं दिखाती भी पूरा सच हूँ। हमें कोई जरूरत ही नहीं कि हम जो है वो उस पर पर्दा डाल दें जो सच नहीं है। तो ये जो चीजें हो रही थी ना, अब जब बड़े ऑफिसर जो है वो एक्टिव हो गए ना, उनके जिम्मे पता चल गया उनको कि फलानी जगह पर जो है वो यहाँ ये गैर कानूनी काम हो रहा है और उन्होंने अपने ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी इंस्पेक्टर्स की कि जाओ भाई ये काम नहीं होना चाहिए, फौरी तौर पर जो है वो ये काम जो है वो जब्त करो। तो अब उन्हें भी समझ आ गई है, वो भी आगे लोगों को यही कहते फिर रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तो ये ऊपर वाले जो ऑर्डर्स होते हैं ना ये जरूरी होते हैं। जिस तरह हम जब जुल्म बढ़ जाता है दुनिया में और जुल्म जो है वो बिल्कुल आखिरी अपनी नहज तक पहुंच जाता है तो फिर ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, वो अल्लाह ताला ऑर्डर्स भेजते हैं। फिर वो जो उनके ऑर्डर्स होते हैं ना वो ऐसे सख्त ऑर्डर्स होते हैं कि वो फिर जालिमों को मानने पड़ते हैं, बल्कि भुगतने पड़ते हैं। तो ये सिलसिला भी हर उस जालिम का है जो लोगों पर जुल्म कर रहा है और अपनी जान पे जुल्म कर रहा है। बेसिकली इंसान अपनी जान पे जुल्म कर रहा है। आप दूसरे पे तो बाद में जुल्म करते हैं, पहले आप अपने ऊपर जुल्म करते हैं। जो आप ये गैर कानूनी मशीन लगाकर बैठे हैं जिससे आप पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं मिनी पेट्रोल पंप की सूरत में, सबसे पहले तो आपकी अपनी जान को खतरा है इससे,
खुदा ना खास्ता वहां आपसे ही कोई ऐसी गलती हो जाए कि जिससे वो मशीन जो है वो वहां पे ब्लास्ट कर जाए और आपकी जिंदगी जो है वो ना बचे, तो आपके पीछे रह जाने वालों का क्या होगा, आपने कभी नहीं सोचा। सिवाय पैसे कमाने के अलावा हमारी कोई दूसरी तीसरी सोच जो है वो डेवलप नहीं होती। ना हम अपने पीछे रहने वालों का सोचते हैं, ना हम अपने आगे जो है मुस्तकबिल का सोचते हैं। हमें सिर्फ ये पता होता है कि जो वक्त गुजर रहा है उसमें हमने पैसे कैसे कमाने हैं, उसमें हमने जो है वो गैर कानूनी काम कर करके, झूठ बोल बोल के ये पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं, क्या ये हलाल भी है या नहीं। ये हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाती है, और जब ये तमीज खत्म हो जाती है तो तब एक ताकत जागती है, और वो होती है हक और सच की ताकत, जिसकी जुबान बंदी भी की जाती है, जिसको सलासिल भी किया जाता है, जिसको जो है वो सलाखों के पीछे बंद भी किया जाता है, लेकिन फिर भी ये जुबान ज़द-ए-आम हो जाती है, और ये फिर हर कोई बोलता है जो पूरा सच होता है। इसीलिए हम पूरा सच प्रोग्राम जो है वो आपके साथ यहाँ पर लेके आते हैं, शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारे प्रोग्राम पे अल्हम्दुलिल्लाह एक्शन भी होता है। और इस दफा डीसी साहिबा ने बाकायदा तौर पे ये मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ जो जारी किए है हुक्मनामा कि आपने जो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इसमें सिविल डिफेंस ऑफिसर जो है इरफान अली साहब वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं छोड़ता भाई, जो मेरे शिकंजे में आ जाए फिर उसके बाद जो है वो ये मशीन वो वहां से ले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो। आगे जुनेद बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जुनेद का जो है इन लोगों के साथ इंटरेक्ट रहता है, ये ज्यादा तौर पे जो है वो जानते हैं हमारे रिपोर्टर्स। जी बिल्कुल, ये देखिए कि जब हम फील्ड की बात करते हैं तो आप कोई भी महकमे की बात कर लें, तो आप जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुछ ले दे के मामला हो जाते हैं, और ये बदकिस्मती से पाकिस्तान का ये शुरू से ये अलमिया रहा है कि कुछ इस तरह के नासिर मौजूद होते हैं। वो आप किसी भी महकमे की बात कर लें या किसी भी आप जगह की बात कर लें, कुछ इस तरह की काली भेड़ें मौजूद होती हैं जो ना सिर्फ जो है आम आदमी को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि जो है महकमे के साथ भी जो है वो वफा नहीं करती और सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए काम करती हैं, दिन रात काम करती हैं। उन्हें किसी किस्म का सरोकार नहीं होता कि महकमे की कारकर्दगी किस तरह की है, हाँ। उनके फराइज किस तरह के हैं और मुफादे आमा के खिलाफ जो है किस तरह की वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और बदकिस्मती से जो है हम देखते हैं कि वो साल से जो है महकमे से जो है वो जुड़े रहते हैं, उनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाइयाँ जो है करने की जरूरत है। ये देखिए, जब हमारी इन सीडीओ से भी बात हुई तो उनका भी कहना है कि जो हमारे नोटिस में आता है उनके खिलाफ भी जो है बाकायदा तौर पे हमें उन्हें डिप्टी कमिश्नर लाहौर के सामने जो है पेश करते हैं और उसे हाईलाइट करते हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, चाहे वो क्यों नहीं किसी कितना भी महकमे का कलीदी किरदार अदा करने वाला कोई बंदा हो या कोई भी मुलाजिम हो या फिर कोई भी ओहदेदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी तरह से आप देखें कि जिस तरह से जिला इंतजामिया में आप देखें मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज जो हैं वो इंस्पेक्टर्स भी हैं, ओहदेदार भी हैं, जो इस तरह की कार्रवाई में मुलविस है। और माजी में भी हमने देखा कि हमने अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी वो सब जगह पर ही मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारे महकमे जो है वो बदनाम होते रहते हैं और एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कोई एक शख्स भी जो है वो रिश्वत लेने वाला या कोई एक शख्स भी जो है वो गलत काम करने वाला किसी महकमे में मौजूद है और उस एक का नाम जो है वो पूरे महकमे के साथ उसकी साख को खराब कर देता है। तो ये जो सिलसिला हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जो मेरा अगला मौजू है, बहुत शुक्रिया जुनेद, आपका भी, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आप प्रोग्राम पसंद करते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरा मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह है। प्रोग्राम को करने का मकसद किसी को जो है वो ऐसे स्क्रीन पर लाकर जो है वो उसकी तजलील करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक करें अपने आप को, इस्लाह जरूरी है। अगर कोई बता रहा है तो आप देखिए कि खराबी कहाँ आ रही है, और जब हमारी निशानदही पर एक्शन होते हैं तो हमें खुशी होती है कि चले हम जो है वो बारिश का पहला कतरा बन गए कि जिसने जो है वो निशानदही की, फिर अवाम के लिए इसको रिलीफ मिला। लेकिन जिस अवाम को हम रिलीफ दिलवाने या सच बोलने की जिनकी खातिर बात करते हैं वही मुश्किल वक्त में छोड़कर जो है वो भाग जाते हैं और अपने घरों में चुपकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अवाम को भी जागना होगा, अवाम को भी अपने हक के लिए आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक भी बड़ा अहम और खास है जनाब। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है बज़ाहिर तो शहर की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका काम जो है वो सफाई सुथराई करना है। इनके हवाले से मैंने बड़े प्रोग्राम्स कर लिए, नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे, इन्होंने शायद अब सुधरना ही नहीं है, या मामला क्या है कि इनके अपने मुलाजमीन ही इनके खिलाफ हैं और रिश्वत लेने से लेकर और भर्तियों तक के तमाम इल्जामात जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हक में जा रहे हैं। आज तो बड़ा ही इंकशाफ होने वाला है जनाब, प्रोग्राम में मिस मत कीजिएगा। अगला हमारा जो स्टेप है, अगला जो हमारा दूसरा पार्ट है, अभी मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा।